Is my slideshow visible? Yes, ma'am. ठीक है, so there are few conditions. First is there should be an employer-employee relationship. Then it should be a contract of service, not contract for service. ठीक है? In order to calculate the salary income, the contract between the parties should be the contract of service. Then salaries, wages doesn't matter. The calculation will remain the same because wages is also a salary. ठीक है? So we calculate the income as if there is no difference between these two words. If you are getting salary from more than one source, then you have to club it. It doesn't matter when you are whether you are receiving the salary from former, present, or prospective employer. All the calculations will come under the head salaries. Then foregoing of salary doesn't waive off your right, doesn't waive off your income from getting charged to tax. It is not exempted. It will be charged, even if you forego your salary. If salary is paid tax free, then also you have to include the taxable portion of that particular salary, and then later on, after calculating the gross total income, you can deduct the taxes. Okay, but you have to include the gross salary, whatever the employer is paying you plus the taxes he is paying on your behalf, that you have to include first, and then later on, after calculating the gross total income, then you can deduct the salaries taxes which is being paid by the employer on your behalf. Then we also discussed about all the things which are inclusive under the calculation of salary: wages, pension, gratuity, commission, any kind of advances, or any kind of balances in recognized provident fund to the extent it's taxable, and many more. Okay, so this definition is inclusive definition, which is there under section 17 subsection 1 of the Income Tax Act 1961. These are the components of salary. Basic salary, it is the minimum salary which the employer is willing to pay to the employee based on his necessary capabilities, abilities. Okay, and usually the grade system is followed. ठीक है, that we have already discussed in the video. Then bonus, ठीक है, some of them are statutory bonus which are compulsory, which are mandatory by the government, and sometimes it is gratuitous bonus, which is kind of a voluntary bonus which is being paid by the employer in order to uh, uh, kind of a reward for the exemplary kind of performance given by the employee. Then commissions, various types of commissions are being offered to the employees, that if you perform that particular type of job, you will get that particular percentage of commissions and so on. Okay, and just give me a moment. Okay, ठीक है. Then allowances, there are various types of allowances which are given. जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं, ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं, पर्सनल अलाउंसेस होते हैं. So there are some kind of allowances which are fully exempt, some of them are fully taxable, some of them are partly taxable and partly exempted. That also we will discuss in detail when we discuss the specific type of allowances. ठीक है. Then perks, perquisites are kind of non-monetary benefits which are given, which you cannot measure in cash, but there are some kind of benefits which are given to the employees, like the facility of a servant or a gardener, or kind of a motor car, or any kind of fully furnished house. If these kind of facilities, if these are given to the employees, then we have to calculate the taxable portion for these facilities. Okay, these are non-monetary in nature, that the employer is not paying any kind of cash, instead they are providing the facilities to the employees. ठीक है. Then होता है retirement benefits and payments. These are being given to the employee at the time of his retirement. So usually gratuity दी जाती है, pension, leave encashment, provident funds. So these four are the benefits which are given
at the time of retirement of the employee. ठीक है. So काफी इनकी different kind of calculations होती है और conditions होती है. So हम जब separately इनको discuss करेंगे तब सारी हम formulas वगैरह learn करेंगे. So if we see in summary, so gross salary is the aggregate of basic salary, bonus, commission, allowances, perquisites and retirement benefits. ठीक है. और ये सारी कैलकुलेशंस हम इन डिटेल धीरे धीरे करके सीखेंगे, बट अभी तक बस ये आपको याद रखना है कि ग्रॉस सैलरी इज द एग्रीगेट. 5 हेड्स में से एक हेड होती है इनकम अंडर द हेड सैलरीज. अब हम खाली सैलरीज कैसे कंप्यूट, हमने अभी तक हाउस प्रॉपर्टी सीख लिया, एक हेड हमारा कंप्लीट है, ये दूसरा हेड है सैलरी का. ठीक है. ग्रॉस टोटल इनकम इज द समेशन ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम. तो अब हम सेकंड हेड पे हैं सैलरी का. ठीक है. विच इज द एग्रीगेट ऑफ दीज 6 incomes. So now let's do this particular question. Mr. X joined services of ABC Limited. On 1st January 2018, his grade pay for basic salary is this. So grade pay is given. ठीक है. 20,000, then her yearly 1,000 will increase till it reaches 40,000. He will be given dearness allowance of 30% of basic salary. ठीक है. जो भी आपकी basic salary है उसका 30% is DA. And bonus in the month of September 2020, which is equal to 1 month of the basic salary. So जो भी basic salary होगी उसकी 1 month जो भी है, that same will be the bonus amount. He is given personal allowances of rupees 5,000 per month, out of which half are saved and half are spent. जो personal allowances होते हैं, these are fully taxable. Whether you save it or whether you spend it, doesn't matter. So ये चीज हमारे लिए irrelevant है, because we know that personal allowances are always taxable. Then he is given official allowance of rupees 6,000 per month. Official allowance है. He saves half amount and spend the remaining half amount. अगर ये कुछ सेव कर रहा है किसमें से, official allowances में से, तो this will be taxable, because official allowances are given so that he can, discharge his official duties. If he is saving from those allowances for his personal purposes, then that will be taxable. So इस वजह से half will be taxable. Company has provided him a servant for domestic help and salary for the servant is 3,000 per month. So this is kind of a perquisite. क्या है, एक सर्वेंट दिया हुआ है, एक डोमेस्टिक हेल्पर दिया हुआ है कंपनी ने, और उसकी सैलरी कौन पे करता है, कंपनी. कितनी पे करती है, 3,000 पर मंथ. सो इसका मतलब दिस विल आल्सो बी टैक्सेबल, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर. You have to calculate the gross salary for the previous year 2021. ठीक है. सो सबसे पहले हमें इसकी बेसिक सैलरी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बेसिक सैलरी डायरेक्ट नहीं दी है, हमें क्या दिया है, ग्रेड पे. और ग्रेड पे कब से शुरू है, 1st January 2018. ठीक है. सो 1st January 2018 को वैल्यू 20,000 रहेगी, फिर 1st January 2019 से इट विल इंक्रीज टू 1,000, दैट इज 21,000. Then 1st January 2020 को it will be 22,000 and 1st January 2021 it will be 23,000. ठीक है. हर 1st January को 1,000 से इसकी बेसिक सैलरी बढ़ रही है. इसी यही मतलब होता है ना इसका ग्रेड पे का, कि हर साल 1,000 बढ़ रही है. अब हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2021, it will start from 1st April. We know that, right? It will start from 1st April 2020 to 31st March 2021. ठीक है. We know that. तो अब ये देखो कितने महीने के लिए कौन सी बेसिक पे, जो उसकी बेसिक सैलरी है वो रेलेवेंट है. सो यहाँ पे 1st April 2020 से उसकी एप्लीकेबल सैलरी है 22,000. ओके. 22,000 है कितने महीनों के लिए, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, 9 months. ठीक है. और बाकी रिमेनिंग 3 months के लिए उसकी कितनी है, 23,000. जनवरी फरवरी मार्च के लिए इट इज 23,000 फॉर
3 months. ठीक है, तो ऐसे करना है आपको अपना बेसिक सैलरी कैलकुलेट. So it will be 2,67,000. ठीक है, 22,000 for 9 months and 23,000 for 3 months. इसके बाद है डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस सीधा सीधा है दैट इट इज 30% ऑफ बेसिक सैलरी. इसका मतलब जो आपकी बेसिक सैलरी है 2,67,000, इसका 30% is your dearness allowance. So 80,100 is your DA. क्लियर है ये सबको? ठीक है, डायरेक्ट जो आपका बेसिक सैलरी था उसका 30%. उसके बाद है बोनस. बोनस कब मिलता है? इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020. तो सितंबर 2020 में उसको बोनस मिला है. कितना मिला है? 1 महीना सैलरी. ठीक है, 1 महीने की सैलरी. सो सितंबर 2020 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे, क्योंकि 1 जनवरी 2020 ये उसका बेसिक सैलरी एप्लीकेबल है. सो सितंबर 2020 में भी क्या होगा? 22,000. सो बोनस विल बी 22,000. ठीक है, इसके बाद क्या है उसके? पर्सनल, राइट, पर्सनल अलाउंसेस. पर्सनल अलाउंसेस कितने हैं? 5,000 पर मंथ. We know that personal allowances are fully taxable. So 5,000 into 12, 60,000. It will be entirely taxable. ठीक है, पर्सनल हमेशा टैक्सेबल होता है. फिर ऑफिशियल है 6,000, पर उसमें हमें पता है ओनली हाफ इज सेव्ड, यानी खाली 3,000 into 12 will be chargeable to tax. जो बाकी 3,000 है that is fully exempted because it was the official allowances which are used on official expenses only. So that is exempted, but half of that amount which is saved, that will be entirely chargeable to tax. ठीक है, सो 3,000 into 12. इसके बाद है हमारे perquisites. perquisites क्या था? डोमेस्टिक हेल्पर की सैलरी 3,000 into 12. That will be entirely charged to tax because this is a perquisite. क्लियर है? इन सबको when we combine, we get the total gross salary of 5,01,100. ठीक है, this is how you have to calculate the gross salary. क्लियर है सबको? Any doubts to anyone? This is a very simple question. You cannot expect such kind of questions to come in your exam. It's very simple. But this is the foundation that how you have to calculate your gross salary. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Now, basis of charge, which is given under section 15, it is very important. Salary is taxable when it's due, gets due or is received, whichever is earlier. जो भी पहले आएगा उसके हिसाब से वो चार्ज हो जाएगी टैक्स के, चाहे वो ड्यू हो जाए पहले, चाहे वो रिसीव्ड हो जाए, जो भी चीज पहले हो रही है. Due means the time when the employee can demand salary from his employer. It means when he has the right to recover the salary from his employer. जैसे now see simple this example. You have to calculate the taxable salary for the month of March 2021. ठीक है, मार्च के देखते हैं. It is received by employee on 24th March 2021 and the due date is 31st March 2021. So it will be taxable on 24th March because received is earlier. ठीक है, so it will be taxable on 24th March 2021 only. Received by employee on 31st March 2021. Due date is also 31st, so taxable is 31st. Simple. कोई question, कोई confusion नहीं है, दोनों चीजें same date पे हो रही है. Then received by employee on 1st April, but it gets due on 31st March. So in this case, it will be taxable on 31st March only. ठीक है, although it was received later than that, but हम whichever is earlier के basis पे करेंगे. Similarly, received on 7th April but gets due on 31st March, so again it will be taxable on 31st March. ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन. अगर कोई प्रीवियस ईयर 2020 है और जो ड्यू डेट है वो हर महीने की स्टार्टिंग डेट है, यानी फर्स्ट है, ठीक है, हर महीने की, और रिसीव कब हो रहा है? हर महीने के 4th डे पे. ठीक है, इसका मतलब अगर हम मार्च 2021
की देखेंगे तो वो कंप्यूट वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें क्या हो रही है 31 मार्च 2021 के बाद हो रही है, मतलब रिसीव भी बाद में हो रही है, ड्यू भी बाद में हो रही है, समझ रहे हो? तो मार्च 2021 की कब टैक्सेबल होगी? प्रीवियस ईयर 2021 में नहीं होगी, 21-22 में होगी। क्यों? क्योंकि आपका वो क्या कहता है कि ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर तो स्टार्टिंग डे ऑफ एवरी मंथ है, क्योंकि ड्यू डेट इज स्टार्टिंग डे ऑफ एवरी मंथ, बट इट इज फॉलिंग आफ्टर द 31st March डेट, it is falling on 1st April 2021. So in this case, it will not fall under previous year 2021. Instead, it will fall under previous year 21-22. Similarly, इस केस में मार्च 2020 की सैलरी टैक्सेबल होगी, क्योंकि इट इज रिसीव्ड ऑन 1st April 2020, तो वो आ जाएगी प्रीवियस ईयर 2021 में। ठीक है, सो मार्च 2020 will be included in the salary computation and March 2021 will be excluded since the due date or receipt date, both of them are falling after the month end. Is this clear? अगर कहीं पे ऐसी स्टेटमेंट लिखी है तो इसका मतलब आपकी मार्च की सैलरी नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट टैक्सेबल होगी और पुरानी मार्च की इस साल हो जाएगी। Shall I move next? मैम फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा इस वाले में ना, इस वाले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि उसकी जो ड्यू डेट है ना, ड्यू डेट ऑफ सैलरी, जस्ट अ मिनट, यस, कहाँ पे थे भाई? इसमें ना दो, एक तो है कि कब रिसीव्ड हुआ है, एक है कब ड्यू डेट है, ठीक है, और कब टैक्सेबल है। इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो ड्यू डेट है वो हमेशा, मैं सिर्फ मार्च की बात कर रही हूँ, ठीक है, और किसी मंथ की बात नहीं कर रही, ओनली अबाउट मार्च। अगर ड्यू डेट है स्टार्टिंग डे ऑफ एवरी मंथ, यानी 1st मार्च 2021, ठीक है, और एक है 1st April 2021, ठीक है। वो कह रहा है जो ड्यू डेट है ना, जो ड्यू डेट है वो हमेशा अगले महीने की, हर महीने की 1st तारीख को होती है,
ठीक है, और रिसीव्ड भी हम रिसीव कब होता है 4th डे को, इसका मतलब 1 मार्च 21 को ड्यू होगी और रिसीव कब होगी 4 मार्च 21 को। ठीक है, सिमिलरली 4 अप्रैल 21 को। ठीक है, इसके बाद टैक्सेबल। अब टैक्सेबल डिसाइड करने के लिए हम क्या कहते हैं, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। सो ये टैक्सेबल हो गई 1 मार्च 21 को, और ये कब हुई है 1 अप्रैल 21 को। ठीक है, इन दिस केस जब व्हेन आवर प्रीवियस ईयर इज 2021, मेरा प्रीवियस ईयर क्या है 2021, उसमें जो मेरी मार्च की सैलरी थी जो 1 अप्रैल 21 को आई, ठीक है, रिसीव हुई, सॉरी ड्यू हुई है, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी दिस इज ड्यू, और रिसीव 4th डे को, ये कॉलम्स इंटरचेंज हो गए, बट वटेवर, हमारी जो मार्च की सैलरी 1 अप्रैल 21 को ड्यू हुई है और 4 अप्रैल 21 को रिसीव हुई है, हम टैक्सेबल कब कर रहे हैं उसको, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 1 अप्रैल 21 को। बट ये मेरे प्रीवियस ईयर में फॉलो नहीं करता है, क्योंकि मेरे प्रीवियस ईयर 31 मार्च 21 को ही खत्म हो रहा है, मैं उसके बाद अप्रैल नहीं ले सकती, भले ही वो मेरी मार्च की सैलरी है, वो ड्यू भी अगले महीने हुई है, वो पे भी अगले महीने हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर 2021 में नहीं आएगी, क्योंकि वो टैक्सेबल कब हो रही है 1 अप्रैल 21 को। ठीक है, सिमिलरली जो मेरी 2020 की होगी, उसकी जो मार्च की सैलरी होगी वो मुझे कब मिली होगी 1 अप्रैल 2020 को, और कब कब ड्यू हुई होगी 1 अप्रैल 2020 और रिसीव हुई होगी 4 अप्रैल 2020। इसका मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगी मेरे प्रीवियस ईयर में, क्योंकि वो कब होगी टैक्सेबल 1 अप्रैल 2020, जो मेरे प्रीवियस ईयर में फॉलो करता है। आपको बस ये देखना है कि ये टैक्सेबल कब हो रही है। अगर टैक्सेबल वो मेरे प्रीवियस ईयर की डेट्स में हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ending on 31st March, if it is lying in that particular year, it will be taxable, otherwise it will not be taxable. So अगर किसी कोई भी डेट, कोई भी मंथ अगर उसके बाहर अगर ड्यू या रिसीव हो रहा है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के, तो वो टैक्सेबल इस साल नहीं होगा, फिर वो अगले साल ही होगा। ठीक है, तो भले ये मार्च की सैलरी थी, बट ये ड्यू और रिसीव अगले महीने की डेट्स में हुई है, इस वजह से मार्च की सैलरी उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगी, अगले साल टैक्सेबल होगी। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, हमेशा देख लेना, वैसे ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं आते, बट हमेशा देख लेना कि कब, काफी बार अगर ये स्टेटमेंट आ गई ना कि अगले महीने हो रही है, तो उसका मतलब हमेशा मार्च की ना अगले अगले प्रीवियस ईयर में होगी, फिर हमारे प्रीवियस ईयर में पिछले वाली प्रीवियस ईयर की मार्च आई। ठीक है, हमेशा मार्च में ही होगा, क्योंकि बीच में तो सब सेटल हो जाता है। Then, in the following 3 cases, amount received is taxable on receipt basis and not on the basis of due or receipt, whichever is earlier. इसका मतलब ये 3 ऐसी इनकम है जो जैसे ही मिलेंगी आप टैक्स कर दोगे, आप ड्यू और रिसीट whichever is earlier वाला रूल फॉलो नहीं करोगे। वो कौन कौन सी 3 इनकम्स है? बोनस, advance salary and arrears of salary. Arrears of salary only if it is not taxed earlier on due basis. अगर वो पहले ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हो पाई हैं और जो भी अरियर्स है अगर वो अब मिल रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। सो ये 3 ऐसी इनकम है जो जैसे ही मिलती है रिसीव्ड के बेसिस पे टैक्सेबल होती है, हमारे रूल के बेसिस पे नहीं होती, जो रूल है ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। क्या है? एक तो बोनस, क्योंकि बोनस यूजुअली ड्यू नहीं होता है, ये मिलता है सीधा। ठीक है, ड्यू नहीं होता है कि ड्यू हो गया तुम्हारा बोनस। बोनस इज समथिंग विच इज वॉलंटरी इन नेचर। देयर आर सम स्टैट्यूटरी बट यूजुअली ड्यू नहीं होता है, इट इज मोस्टली ऑन वॉलंटरी बेसिस। सो जब भी मिलेगा टैक्सेबल। एडवांस सैलरी, अगर कभी एम्प्लॉय ने एडवांस में सैलरी ले ली है तो वो तभी टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज उस ईयर में आपने वो सैलरी ली है। ठीक है, सो इसका मतलब आप नेक्स्ट ईयर उसको चार्ज नहीं करोगे, आप इसी साल कर लोगे क्योंकि आपने एडवांस में ले लिया। देन एरियर ऑफ सैलरी, अगर
पुराने कुछ सालों में आपको कोई सैलरी नहीं मिली और वो आज आपको मिल रही है और वो पहले कभी टैक्स भी नहीं हुई, अगर वो टैक्स हो चुकी है तब तो भाई आप नहीं करोगे, उस पर दो बारी थोड़ी टैक्स पे करोगे। तो अगर वो पहले टैक्स नहीं हुई है और अब आपको कोई एरियर्स मिले हैं तो इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, सपोज Mr. X, an employee in ABC company getting salary of rupees 25,000 per month. He gets bonus of rupees 10,000 for current year and rupees 25,000 for the preceding year. मतलब previous year का भी कोई bonus मिला है उसको, ठीक है। In the month of March 2021, he takes advances of 2 months salary, that is April and May. मतलब March 2021 में उसने अगले 2 महीने की अप्रैल और मई की एडवांस में सैलरी ले ली। So calculate his gross salary for the year 2021 and 21-22, मतलब दो का निकालना है आपको। ठीक है, so आपकी जो 21-22 है उसमें आपकी बेसिक सैलरी तो पूरे 12 महीने की रही है, बट 21-22 में सिर्फ 10 महीने की रह जाएगी क्योंकि 2 महीने की आप पहले ही यहाँ पे एडवांस सैलरी ले चुके हो। आप ऑलरेडी वो 2 महीना यहाँ पे ही टैक्सेबल कर दोगे, यहाँ पे फिर वो नहीं आएगा। ठीक है, अप्रैल और मई 2021 की सैलरी आपने कब ले ली है? 2021 में ही ले ली है। ठीक है, सो इट विल बी 25,000 into 12 और यहाँ पे 25,000 into 10 because this is already taken by the employee in previous year 2021. So यहाँ पे सिर्फ 10 महीने की आएगी। बोनस हमेशा ऑन रिसीट बेसिस होता है, तो 10,000 और 25,000 जब आपको मिला आपने टैक्स कर दिया। एडवांस आपने प्रीवियस ईयर 2021 में ही आपका टैक्सेबल हो गया, दोनों महीने का 25,000। So for previous year 2021, your gross salary will be 3,85,000 और यहाँ पे it is 2,50,000। यहाँ पे बस 12 से 10 हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा थोड़ी, अब 2 महीने की और थोड़ी एक्स्ट्रा सैलरी देगा एम्प्लॉयर, उसने पहले ही दे दी थी एडवांस में 2021 में, तो 21-22 में सिर्फ 10 महीने की सैलरी मिलेगी इसे। क्लियर है? यस मैम। ओके। Mr. X, an employee in ABC company getting salary of rupees 15,000 per month. He gets bonus of 1 month's salary. In the month of March 2021, he received arrears of 2 months salary of previous year 1920. Calculate his gross salary for the year 2021 assuming that arrears were taxable in previous year 1920 on due basis या फिर arrears were not taxable in previous year 1920 on due basis। बताओ क्या होगा फर्स्ट वाली कंडीशन में, क्या होगा एरियर्स का ट्रीटमेंट? टेल मी। इस ईयर हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे एरियर्स वाला क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो गया है। वेरी गुड। एंड इन द सेकंड केस करेंगे मैम। करेंगे। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। अगर पहले ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुके हैं ड्यू बेसिस पे, क्योंकि रिसीव तो डेफिनेटली नहीं हुए, रिसीव तो अब हो रहे हैं, तो ड्यू बेसिस पे अगर टैक्सेबल हो चुके हैं तो हम इस साल दोबारा टैक्सेबल नहीं करेंगे, बट अगर वो नहीं हुए हैं तो हम डेफिनेटली टैक्स करेंगे। सो ये हो गया आपका केस 1। बेसिक सैलरी 15,000 into 12, दोनों के केस में बोनस मिल रहा है 15,000 वो तो मिल ही रहा है एक महीने की सैलरी। Arrears केस 1 में नहीं होंगे because it is already being charged to tax on due basis in previous year 1920, but केस 2 में वो होंगे। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ना एक कंसेप्ट आता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 फॉर एरियर्स ऑफ सैलरी। ये रिलीफ क्या बात करता है बेसिकली? काफी बार क्या होता है, जैसे I'll give you an example of a central government employee only. Many a times what happens, ये आता है 10-year पे कमीशन। सो जब 10-year पे कमीशन आता है तो क्या होता है, सैलरीज एकदम से रिवाइज हो जाती है। तो क्या होता है कि एक ऐसा होता है कि इस तारीख से वो ड्यू तो हो गई है बट वो मिलती नहीं है, वो काफी लेट मिलती है। ठीक है, या फिर काफी बार होता है कि ऐसा होता है कि अभी बढ़ा दिया हमने बट अभी मिलनी शुरू होगी। तो उस केस में क्या होता है कि जो टैक्सेबल अगर वो नहीं हुई होती है, आप जैसे एकदम से रिसीव हुई, सपोज आपकी ना 16 से दे वर ड्यू बट इट वाज नॉट टैक्स्ड अर्लियर एंड नाउ इन द ईयर 2020 and 21
you are actually receiving say 2 lakh 3 lakhs of arrears of salary, इतना पुराना आपको एकदम से मिल रहा है। तो अब ये देखो आपको मिल रहा है तो क्या हो रहा है कि आपका स्लैब रेट माइट गेट इंक्रीज्ड, क्योंकि आपको करंट ईयर की सैलरी तो मिल ही रही है, एट द सेम टाइम आपको प्रीवियस ईयर के इतने ज्यादा एरियर्स मिल रहे हैं, 3-4 लाख सपोज आपको मिल रहे हैं। तो क्या होगा, पहले सपोज आप 9 लाख की बैट उस पे थे स्लैब पे, अब एकदम से क्या हो गया 3 लाख बढ़ती है, आप 12 लाख पे आ गए। अब आपका एकदम से क्या हो गया है, टैक्स रेट बढ़ गया है, क्योंकि स्लैब रेट्स 12 लाख पे कितने 30% और अप टू 10 लाख कितने कितने 5-20% है ना। तो देखो एकदम से आपका स्लैब रेट कितना ज्यादा बढ़ गया। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर तुम्हें एरियर्स मिलते हैं, ठीक है, तो उस एरियर्स की जो टैक्स की कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय, राइट। अब एकदम से इतने एरियर्स आ गए, उसका टैक्स रेट बढ़ गया, एकदम से वो नेक्स्ट स्लैब में जंप कर गया है, हालांकि उसको जंप नहीं करना था क्योंकि ये चीज पहले ही टैक्स हो जानी थी। सो इस वजह से क्या होता है, रिलीफ होती है अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1, दैट इज टोटली अबाउट द एरियर्स, कि अगर कोई एरियर्स ऑफ सैलरी मिलते हैं, ठीक है, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन विच यू कैन कैलकुलेट द रिलीफ, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो यू कैन रीड फ्रॉम द स्लाइड्स, दिस इज द इलस्ट्रेशन, यू कैन रीड इट, इट्स वेरी इजी, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें क्या होता है, आपको 2 स्टेप्स कैलकुलेट करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि पहले तो आप उस साल की इनकम निकालो जिस साल में एरियर्स रिसीव होने थे, ठीक है, उन एरियर्स को मिला के निकालो कितना टैक्स बनता है, और वो भी टैक्स निकालो जितना आपने उन एरियर्स को बिना इंक्लूड करे बनाया है, और उसका डिफरेंस निकाल लो, मतलब कि उसी साल का जिस साल में वो ड्यू होने चाहिए थे, रिसीव होने चाहिए थे, एक बार उसमें एरियर्स ऐड कर दो, एक बार उससे एरियर्स निकाल लो, उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर दो। उसके बाद जिस साल मिले हैं, ठीक है, जिस साल में मिले हैं उस साल में फिर से कैलकुलेट करो एरियर्स को मिला के और बिना एरियर्स को मिला के, और फिर वो दोनों का टैक्स का डिफरेंस ले लो, जो भी आपका नेट टैक्स पेएबल है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना, दैट इज योर रिलीफ, ठीक है। दिस इज द एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ 3 ओवर स्टेप 6, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा होगा दैट इज द रिलीफ, because this is something which you are not which you are not bound to pay to the government, because this is not your fault. तो इसमें आपके 2 स्टेप्स कैलकुलेट होते हैं, पहले उस साल के जिससे वो बिलोंग करते हैं वहां पे उनको एक बारी जोड़ो और एक बारी मत जोड़ो, सिमिलरली वो साल जिसमें वो रिसीव हुए हैं तो एक बारी जोड़कर एरियर्स को एक बारी बिना जोड़ो, ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस फिर निकालो, और फिर टोटल डिफरेंस निकालो बिटवीन स्टेप 1 एंड 2, और जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज द रिलीफ, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन आप कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई विल नॉट स्पेंड टाइम हियर। समटाइम्स पता है क्या होता है, अभी तो मैंने आपको स्लैब बताया है, काफी बार क्या होता है टैक्स रेट्स भी चेंज हो जाते हैं, स्लैब रेट्स ही चेंज हो जाते हैं, पहले जैसे अप टू 5 लाख पहले एग्जाम पहले इस पे सपोज 10% टैक्स हुआ करता था, और अब इस पे 5 हो गया, या कभी इस पे बढ़ जाता है, तो काफी बार टैक्स रेट्स भी चेंज हो जाते हैं फाइनेंशियल ईयर्स के, ठीक है। तो इस वजह से रिलीफ का ये फॉर्मूला है, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, ठीक है। इस इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा, बट दिस इज योर होमवर्क। Now next comes the place of accrual of salary income. It is section 9 subsection 1. So there is a general rule, if service is rendered in India then salary income is deemed to accrue or arise in India. ये हमने residential status में भी किया था कि अगर कोई भी सर्विस इंडिया में रेंडर्ड है तो सैलरी इनकम हमेशा अज्यूम करी जाएगी कि इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और जैसे ही डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाती है वैसे ही वो इंडियन इनकम हो जाती है, और इंडियन इनकम इज ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स irrespective of the residential status that we have already done at the time of residential status. But there are some exceptions related to this, ठीक है। exceptions क्या है, first case when the employee is Indian citizen, is Indian citizen and the employer is government of India and the services are also rendered outside India, उस केस में सैलरी तो टैक्सेबल है बट अलाउंसेस पर्क्विजेस सारे एग्जेम्प्टेड है,
ठीक है, ये आपको कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ के केस में क्या है, सर्विसेज आर नॉट रेंडर्ड इन इंडिया, इट इज रेंडर्ड आउटसाइड। लेकिन एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एम्प्लॉय कौन है, डेफिनेटली एन इंडियन सिटीजन। He could be resident, non-resident, doesn't matter. But the employee should be the Indian citizen. So अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी इंडियन सिटीजन को कोई भी सैलरी इनकम पे कर रही है फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो वो सैलरी इज टैक्सेबल। ठीक है, वो सैलरी टैक्सेबल होगी, बट अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्टेड। तो दोबारा से एक बार ही आएगा केस, फिर से हम ये डिस्कस करेंगे। अभी बस याद रखना कि अगर कोई सर्विस बाहर होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग द पेमेंट बट इंडियन सिटीजन है वो, तो सैलरी टैक्सेबल है। दूसरे केस में इफ द पर्सन इज नॉन रेजिडेंट, ठीक है, other than case 1, matlab he is not a Indian citizen, he is a foreign citizen and he is non-resident, then can be any employer if the services are outside India, it is not taxable. Salary will not be taxable because it's a foreign income now. ठीक है, एंड ही इज नॉन रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंट के केस में भी नो इट इज चार्जेबल टू टैक्स। रेजिडेंट अगर फॉरेन इनकम है तो हमें पता है आरओआर के लिए इट इज टैक्सेबल, ठीक है, बट नॉन रेजिडेंट के लिए इट इज नॉट टैक्सेबल since it is a foreign income. अब है resident and ordinarily resident means he is ROR, whether he is Indian citizen, foreign citizen, doesn't matter, but he is ROR. उस केस में चाहे कोई भी एम्प्लॉयर हो, चाहे सर्विसेज इंडिया में हो, चाहे बाहर हो, कहीं पे भी हो, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, क्योंकि हमें पता है आरओआर के लिए फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम सब टैक्सेबल। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना इन केस ऑफ आरओआर, इसके लिए तो हमेशा टैक्सेबल होती है, बट एनआर के केस में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। और अगर इंडियन सिटीजन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयर है, तब उस केस में अगर सर्विसेज बाहर है तो सैलरी तो होगी बट अलाउंसेस परक्विजिट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है इंडियन सिटीजन को बाहर सर्विसेज? तो यूजुअली डिप्लोमैट्स जो होते हैं ना, जो बाहर ही वहीं पे फॉरेन डिप्लोमैट्स होते हैं जो बाहर रहकर सारी सर्विसेज करते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो एम्प्लॉय होते हैं बट वो बाहर सारी सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो जो भी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे करती है वो टैक्सेबल होती है, बट अलाउंसेस परक्विजिट्स नहीं होते। क्लियर है ये सबको? क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट कम्स डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अंडर सेक्शन 16। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में भी दो डिडक्शंस थी ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट, ऐसे ही ग्रॉस सैलरी में भी कुछ डिडक्शंस हैं, और तीन टाइप की डिडक्शंस हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स स्लैश एम्प्लॉयमेंट टैक्स। इन डिडक्शंस को इन डिडक्शंस को रिड्यूस करने के बाद ही आपकी टैक्सेबल सैलरी आती है, इसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी भी कह सकते हैं या फिर इनकम अंडर द हेड सैलरी। जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम का होता है, क्या होता है, जी दिस NAV minus all your deductions equals to your house property income. ऐसे ही gross salary minus deductions equals to your taxable salary. So standard deduction is rupees 50,000 or the amount of salary whichever is lower. ठीक है, so standard deduction कितनी है, 50,000. ठीक है, अगर उससे कम है सैलरी तो वो पूरी सैलरी आपकी exempt हो जाएगी, whatever be the salary, if it is lower than that. So it is 50,000 or the amount of salary whichever is lower. Entertainment allowances, this is a special allowances which are given by the employer to meet various expenses on hospitality of business customers or business clients. So काफी बार ये allowances मिलते हैं employees को because उनको काफी खर्चा करना पड़ता है in order to do the hospitality of the clients of their customers and these things. So उनपे जो खर्चा होता है उससे रिगार्डिंग वो उनको स्पेशल अलाउंस देते हैं, उसको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कहे जाते हैं। सो जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होते हैं, फर्स्ट दे आर एडेड इन ग्रॉस सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉइज, वेदर ही इज गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट डजंट मैटर, इट इज ऑलवेज एडेड इन द ग्रॉस सैलरी। फिर जब डिडक्शंस आती है ना, तो डिडक्शन में वो रिड्यूस होते हैं बट ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज।
whether central government or state government doesn't matter, but only to the government employees it is allowed to be reduced. इसका मतलब private employees के लिए ये deduction नहीं है. This is only for the government employees. But पहले ये add होगा gross salary में. ये ग्रॉस सैलरी है ना, इसमें इसके ऊपर की कैलकुलेशन में पहले ये ऐड होगा और फिर खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केसेस में ये सब्ट्रैक्ट होगा. प्राइवेट वालों के केस में इट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, सो पहले ऐड होगा, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, फिर आपकी टैक्सेबल सैलरी आएगी. ठीक है, तो अगर आप देखोगे फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज फर्स्ट एडेड हियर फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट गवर्नमेंट के केस में सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा. ठीक है, डिडक्शन कितना है? इट विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी अगर जो एक्चुअल दिए हैं एम्प्लॉयर ने, या फिर ₹5,000. ठीक है, दिस is in total. It is neither per month, this is neither per annum, this is the maximum limit. 5,000 rupees, it is the maximum limit, or 20% of basic salary. ठीक है, basic salary without including any kind of allowances, perquisites, nothing, only the basic salary. DA भी नहीं inclusive है, उसका 20%. इन तीनों का जो भी least amount होगा that will be allowed as deduction. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, कौन सा है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल, 5,000 या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी. Important notes to be noted here. The amount actually spent by the employee towards entertainment out of the entertainment allowances received is not taken into consideration. So जो एक्चुअल में स्पेंड कर रहा है वो आपको कंसिडर नहीं करना. आपको यही मिलना है कि कितने ग्रांटेड हुए हैं, कितने मिले हैं फ्रॉम एम्प्लॉयर. ठीक है, कितना उसने स्पेंड किया वो कहीं कैलकुलेशन में कहीं पे भी नहीं आना है. Non-government employees, including employees of statutory corporations and local authority employees, entertainment allowances is not deductible. मतलब खाली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और लोकल अथॉरिटीज के लिए नहीं है. ठीक है, sumptuary allowances has to be treated as entertainment allowances. This is another word for entertainment allowances. Sometimes questions पे sumptuary allowances आ सकता है. इसका same treatment है. It is nothing. It is just the entertainment allowance only. ठीक है, so let's do this question. Then we will end our class here. Mr. X, an employee in ABC company, getting salary of 40,000 per month. Dearness allowances 25% of basic salary. He gets bonus of 2 months salary. Entertainment allowance is 9,000 per month. Calculate his taxable salary assuming he is government and non-government. ठीक है, तो हम ग्रॉस सैलरी निकालेंगे. सबसे पहले क्या हुआ? for government it is 40,000 into 12, 4,80,000, and non-government के लिए भी 4,80,000. DNS allowance is simple, 25% of basic salary, so 1,20,000, 1,20,000. Bonus is 2 months of salary, so 80. ठीक है, entertainment allowances is how much? 9,000 into 12. 9,000 into 12. ये चीज जो मिलती है, जो भी एम्प्लॉय ग्रांट करता है उसको देता है, वो आएगा. ठीक है, सो 1,08,000, 1,08,000. हमने बोला है ना पहले एंटरटेनमेंट अलाउंसेस को ग्रॉस सैलरी में ऐड करो. अब हमारी आ गई, सबको ऐड करने के बाद हमारी सेम आ गई है दोनों के केस में. हमारी ग्रॉस सैलरी 7,88,000. 7,88,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और द ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर. तो 50,000 इज लोअर तो मिलेगा. ये दोनों के केस में मिलता है, irrespective of the nature of the employment, whether he is government, non-government, doesn't matter. 50,000 standard deduction is available to all the employees. Deduction under section 16 subsection 2, उसका फॉर्मूला क्या कहता है? नॉन गवर्नमेंट का तो हमें पता है मिलेगा ही नहीं, यहाँ तो नील आ जाएगा. गवर्नमेंट वालों के में कैलकुलेशन है. क्या है? पहले एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल कितना मिला है? 1,08,000. Then 5,000 is the maximum limit, और 20% of basic salary. Basic salary कितनी है? 4,80,000. इसका 20% is 96,000. इन तीनों में से सबसे छोटा क्या है?
5000, सो इसका मतलब 5000 की उसको डिडक्शन मिलेगा और ये रिड्यूस करके टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी दोनों। ठीक है, सो हमेशा एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ज्यादातर क्या होता है 5000 ही होता है क्योंकि इससे नीचे कभी अमाउंट नहीं आता है। ठीक है, तो हमेशा 5000 होता है, बट एकदम से 5000 मत लिख देना। फॉर्मूला गिवन है आपके इनकम टैक्स एक्ट में, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमेशा कैलकुलेट करना। ठीक है, कि एक्चुअल में कितना मिला है एम्प्लॉयर से, मैक्सिमम लिमिट है 5000 और दूसरा तीसरा फॉर्मूला है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और इन तीनों से सबसे छोटा अमाउंट है 5000, तो 5000 ही मिलेगा, लीस्ट मिलता है ना। सो ऐसे, बट ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है आपके प्रोफेशनल टैक्सेस, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन?